Good morning, you all. How are you? I hope you all are safe and healthy at your home. As you know, your vacations are over. So, again, we focus on our study. Today, we will read about chapter 4 of Science as States of Matter. In this chapter, we read about matter and states of matter. Second is properties of solid, liquid, gas, and third is change of states. So we read three topics in this chapter. Okay. Given in the box are some things around us. Arrange the things in the correct column. Here is given some things. Okay, in this box there are given some things. So according to these states we put in the particular column. So like columns are solids, states are solid, liquid and gas. So put these things in particular states. Okay, like hat is in solid column, tree solid, chair solid, ice cube solid, key solid. These are solid things, so put in solid column. Okay, next is liquid. So liquid, water, juice, soup, milk and tea. These are liquid things, so put in liquid column. Okay, next is gas, air inside the balloon, football, wind, breeze, air from the fan and air inside the balloon. These are example of gas, so put in gas column. Okay, this is the table. Now matter. Look around yourself. अपने चारों ओर देखिए. You will see many things such as books, table, pen, tree, car and water. There are two things that are common among these objects. Okay, अपने चारों ओर देखिए. आप क्या देखोगे? टेबल, बुक, पेन, ट्री, कार, वाटर. ये हम देखते हैं ना अपने चारों ओर. So इन थिंग्स में two common things होती है. First is all object takes up space. For example, a book takes up space and your study table takes up space. Means anything. Okay, कोई भी चीज़ होती है उसमें क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है. लाइक अ बुक अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी. हमने टेबल पर बुक को रखा तो बुक ने क्या किया, अपना स्पेस रखा ना, जितना स्पेस उसको चाहिए था उसने वो घेर लिया. सो एंड जो आपके स्टडी टेबल है हमने उसको किसी भी प्लेस पे रखा तो उसने वो स्पेस ऑक्यूपाई किया. ओके, सेकेंड इज ऑल ऑब्जेक्ट हैव मास. मास इज हाउ मच देयर इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑल ऑब्जेक्ट हैव मास. सभी ऑब्जेक्ट में मास होता है. एंड मास इज हाउ मच देयर इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो कितना है. ओके, इट टेल अस मास. ये हमें मास बताता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना है, क्या है. ओके, anything that has mass and takes up space is matter. Anything जिसमें मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, it call matter. Is there anything around you which you can see, which you cannot see but you can feel? ऐसी क्या आपके आसपास ऐसे कोई चीज़ है जिसको आप देख तो नहीं सकते हो बट आप उसको फील कर सकते हो? Is there anything? है कोई आपके पास ऐसी कोई चीज़ कि हम उसको देख नहीं सकते बट हम उसको फील कर सकते हैं? Find out, search it. Matter, book, car, table, water, tree. These are matter. The three states of matter. Okay, look at here. मैटर एक्सिस्ट इन थ्री स्टेट्स. जो मैटर होता है वो थ्री स्टेट्स में एक्सिस्ट होता है, मौजूद होता है. लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके,
the three states of matter. Solid have fixed shape. Look at here, solid की क्या होता है? Solid have fixed shape. Solid की fixed shape and size होती है and they do not flow, और वो flow भी नहीं कर पाता है. Okay, like a book. Book की जो shape है वो fix है और ये flow नहीं कर पाती है, बह नहीं पाती है. Okay, so we can say they do not flow. For example, book, pencil, table, car, plate are objects that are solid. These are example of solid. Liquid. Things such as water, juice, milk and oil have fixed volume. Look at property of liquid. Liquid things have fixed volume or size. जो liquid things होते हैं उनकी fixed volume और size होता है, but no fixed shape. उसकी कोई fixed shape नहीं होती है. They can flow, और जो liquid होता है वो flow कर सकता है. And take the shape of the container in which they are kept. और उस container का shape ले लेता है जिसमें उसको रखा जाता है. Such things are called liquid. और like for example, हम suppose कीजिए हमारे पास एक water का glass है, ठीक है. जब हमने water glass में डाला तो वो glass का shape ले रहा है, और जब हमने उसी water को एक bottle में डाला तो वो bottle का shape ले लेगा. फिर हमने उसी water को एक ball में डाला तो वो उस बाउल का शेप भी ले लेता है. सो हम जिस कंटेनर में लिक्विड को डालते हैं उस लिक्विड का शेप उसी कंटेनर के अकॉर्डिंग हो जाता है. गैस. A gas is a matter that has no shape or size. Now property of gas, that gas has no shape and size on it. मीन्स जो गैस है उसकी कोई अपनी शेप और साइज नहीं होती है. ओके. For example, water vapor. Water vapor is an example of gas. Gas can flow and fill all the space available to them. जो गैस होती है वो flow कर सकती है. It's a property of gas. This is the property of gas. Okay. So gas क्या होता है? Flow कर जाती है, उड़ सकती है, and जितना भी space उसके पास available होता है वो उसको occupy कर लेता है, पूरे में फैल जाती है. Air is a mixture of different gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide. Air बहुत सारी gases का mixture होती है. We can feel air when the wind blow. जब हवा चलती है तो हम air को feel कर सकते हैं. The wind is moving air. This is the definition of wind. This is the definition of wind. कि जो the wind is moving air. Clear? Next, change of states. When a solid, liquid or gas is brought to very high or very low temperature, it can change to another states. Okay. जब solid, liquid और gas किसी हाई टेम्परेचर में या वेरी लो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं, सो इनके स्टेट्स में चेंज होता है. मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग. लुक एट हियर. मेल्टिंग, वेपराइजेशन, condensation and freezing are some process through which matter may change from one state to another states. By the four processes, matter can change in one state to another state. Means in 4 states के through matter में changes आते हैं. Okay. Melting is the process by which a solid turn into liquid. मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जाता है ऑन हीटिंग. जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा. एग्जाम्पल, व्हेन वी हीट अ पीस ऑफ आइस इट टर्न इनटू वाटर. आपने देखा होगा जब हम फ्रिज में से आइस को निकालते हैं और थोड़ी देर बाहर रखते हैं वार्म टेम्परेचर में, है ना, तो वो मेल्ट होने लग जाती है. ओके. वी से दैट आइस मेल्ट इनटू वाटर. तो हम कहते हैं कि जो आइस है वो मेल्ट होकर वाटर में टर्न हो रही है, चेंज हो रही है. Vaporization is the process by which a liquid turned into gas on heating. Means vaporization में liquid को heat करके gas में turn किया जाता है. Okay. Now example, on heating further the water turned into vapor. जब हमने water को heat किया तो वो water vapor में change हो गया. Next is condensation.
कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच गैस टर्न इनटू लिक्विड। कंडेंसेशन में गैस से किस में चेंज किया जाता है गैस को? लिक्विड में, ऑन कूलिंग। ठीक है, जैसे वाटर वेपर कूल होगा तो वो किस में चेंज होगा? लिक्विड में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, द मॉइस्चर दैट अपीयर ऑन द आउटसाइड ऑफ वाटर बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर। कोई कोल्ड वाटर बॉटल है, आपने देखा होगा उसके आउटसाइड, बाहर के साइड मॉइस्चर बन जाता है। ओके, सो एंड नेक्स्ट इज फ्रीजिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है? लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया जाता है कूलिंग करके। ओके, लाइक वाटर को हमने फ्रीज़र में रखा तो उससे क्या हुआ? वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में चेंज हो गया। ओके, एग्जाम्पल, वाटर कैन बी चेंज इनटू सॉलिड आइस बाय पुटिंग इट इन द फ्रीज़र। वी कॉल दिस फ्रीजिंग ऑफ वाटर। हम क्या कहेंगे कि वाटर को हमने फ्रीजिंग किया तो क्या बन गया? आइस बन गई। ओके, नेक्स्ट इज process that bring change in states of matter. These are processing: melting, vaporization, condensation and freezing. These are process of change the state of matter. So here is melting of ice, ice melt हो रही है। Here is vaporization, vaporization में क्या हो रहा है? जब हमने वाटर को हीट किया तो उससे क्या निकल रहा है? वाटर वेपर। ओके, नेक्स्ट कंडेंसेशन, जब हमारे पास कोल्ड वाटर बॉटल है तो उसके आउटसाइड में क्या हो गया? क्या अपीयर हो रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? मॉइस्चर। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीजिंग, जब हमने लिक्विड को, वाटर को फ्रीज़र में रखा सो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? आइस क्यूब्स में। ओके, नाउ फैक्ट, हीट मेल्ट a solid and turn it into liquid। जब हमने सॉलिड को हीट किया तो उसने क्या किया? सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो गया। कूलिंग फ्रीजर्स अ लिक्विड इनटू सॉलिड। हमने क्या किया? लिक्विड को चेंज करने के लिए उसको फ्रीजेस किया तो लिक्विड से क्या बन गया? सॉलिड में चेंज हो गया। डिफरेंट सॉलिड मेल्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं तो उनको मेल्ट करने के लिए भी डिफरेंट टेम्परेचर होता है। सम हाई सम लो। कुछ जो सॉलिड थिंग्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं और कुछ लो टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। दीज आर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, और इनको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। Water is one of the few things that we can commonly see in the state of solid, liquid and gas in our day-to-day life. Water एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हम all three states को easily find कर सकते हैं। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर की all three forms होती है, 3 states होते हैं और हम easily अपनी डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ भी करते हैं। लाइक आइस, सॉलिड, लाइक वाटर, लिक्विड, लाइक गैस, वाटर वेपर। सो ये हमारे जो हम किचन में मम्मा काम करती है तो आपने देखा होगा मम्मा ने वाटर को फ्रीज़ में रखा, वो आइस में कन्वर्ट हो गया। वाटर हम डेली ड्रिंक करते ही हैं एंड जब मम्मा वाटर हीट करती है, वाटर गर्म करती है तो उसमें से वाटर वेपर निकलता है। सो दीज आर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर एंड वी कैन सी एंड यूज़ आर डेली या डे टू डे लाइफ। Let's recap. Anything that has mass and takes space is matter. Anything, this is the definition of matter. Okay? Anything जिसमें mass हो और space cover करता हो, it called matter. Matter exists in 3 states: solid, liquid, gas. So this is the states of matter. These are states of matter. Third is melting, vaporization, condensation and freezing are some process through which matter may change from one state to another state. So these are processing: melting, vaporization, condensation and freezing. These are process through we can change the matter in one state to another states. Okay, next is keyword. So condensation, द प्रोसेस बाय विच गैस टर्न इनटू लिक्विड। कंडेंसेशन में क्या होता है? गैस को लिक्विड में चेंज किया जाता है ऑन कूलिंग। वेपराइजेशन, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न इनटू गैस ऑन हीटिंग।
हम वेपराइजेशन कैसे होता है, लिक्विड को गैस में टर्न करना हीट करते हुए. फ्रीजिंग, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना ऑन कूलिंग. ठीक है, कूल करके लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया जाता है. गैस, गैस इज़ अ मैटर दैट हैज़ नो शेप और साइज ऑफ इट्स ऑन, मीन्स गैस की अपना गैस एक मैटर है बट उसके कोई अपने शेप और साइज नहीं होती. लिक्विड, थिंग्स दैट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम और साइज बट नो फिक्स शेप, जो लिक्विड थिंग्स होती हैं उनकी फिक्स वॉल्यूम और साइज तो होती है बट उनकी फिक्स शेप नहीं होती है, वो उस पर्टिकुलर कंटेनर का शेप लेता है जिसमें हम उसको रखते हैं. मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, वी ऑलरेडी रेड अबाउट. मेल्टिंग, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड टर्न इनटू लिक्विड, मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं ऑन हीटिंग के थ्रू. एंड नेक्स्ट इज सॉलिड, ऑब्जेक्ट दैट हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, की जो सॉलिड होता है उसकी फिक्स शेप एंड साइज होता है. I hope students you understand this chapter. Read it again carefully and do these keywords in your notebook in good handwriting and neat and clean work. Okay? Thank you. Have a nice day.